Uh, Assalamu alaikum, everyone across Pakistan from Parsa Echo Pakistan. My name is Dr. Asad Chaudhary, and I'll be your host today. This is a series of sessions on palliative care, and this has been a brainchild of Dr. Farooq Khan, who is a consultant hepatologist from Leicester, UK. And I'm very grateful to Professor Altaf Alam, who's also our course director, to spearhead this program. And I'm really delighted to see so much interest in the session so far. Just very briefly, some regular announcement. By virtue of joining, you are giving consent for this session to be recorded. And this video will be available on YouTube channel later on. We are part of Project ECHO, based in University of New Mexico, Albuquerque, United States. And the purpose is moving knowledge fast and especially spreading specialist knowledge to general practitioners in far-flung areas of Pakistan. And it is our goal and dream to achieve this goal, this aim of ours in due course of time. और हम ये चाहते हैं कि एक जनरल प्रैक्टिस में लोगों को उनके घरों के पास वो केयर मिले जो वो स्पेशलिस्ट के पास सीख करते हैं. ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अभी भी हम बिलीव करते हैं 70-80% ऑफ द टाइम्स a lot of service can be done and lot of service can be provided to poor people of this country close to their doorstep. So all you need is to be aware of the right knowledge and be aware of the facilities available to you, available near to you. You should know where to treat, where to refer, and about this palliative care to make a decision that this patient is to be kept comfortable only, and what can we do, what can be done at home, and what can be done in a hospital setting. So I won't be taking a lot of time. I can see Farooq Khan joining. Welcome, Farooq, and Professor Altaf Alam is here. Professor Javed Iqbal Farooqi is here. This talk today is on palliative management for ascites and hydrothorax. This is not regular management of ascites and hydrothorax. ये उन लोगों में मैनेजमेंट है जिन लोगों में ये डिसीजन हो चुका हुआ है कि जो लिवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं है और फर्दर परसू नहीं करना चाहते, तो उनको आप कैसे इस टाइम में कंफर्टेबल रख सकते हैं और क्या सर्विसेज आप उनको ऑफर कर सकते हैं. और जो स्पीकर हैं, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट चूंकि ये मेरी ड्यूटी है, तो प्रोफेसर अल्ताफ आलम इज retired professor and head of department of gastroenterology department, Sheikh Zayed Hospital. Currently, he is based in Evercare Hospital, Lahore, providing his services there. And he is a great teacher. We have all learned so much from him over the period of time. He is also a course director of our ECHO program of Parsa ECHO Pakistan. Dr. Altaf, मैंने 3 मिनट नहीं है सिर्फ. I hope I was not too long. So it's over to you. Please go ahead. Thank you. Thank you very much. Thank you, Asad, for this kind introduction. I'm glad to see Farooq, who can answer the questions on the chat while I'm talking to you about ascites and hydrothorax in patients who are not suitable for liver transplant or as a part of palliative care. So just bear with me. I'm trying to share my slides. I hope you can see my slides now, Asad. Dr. Altaf, we can see this palliative care. Okay, so this talk is in collaboration with the ECHO project, Parsa ECHO Pakistan and Pakistan Society of Hepatology. I'm glad to see
both the ex and the current president of PSH with us today, Professor Farooqi and Dr. Kashif Malik, Professor Kashif Malik. So welcome to the program. So what I'm going to talk about is palliative care of end-stage decompensated liver cirrhosis, non-transplant patients, and I'm going to stick to ascites and hydrothorax. I'm going to, quote EASL guidelines on decompensated cirrhosis a lot, so bear with me. I have no disclosures to make, and as I said, I'm going to quote EASL clinical practice guidelines in decompensated cirrhosis at various places to highlight what are the guidelines for the management of ascites and hydrothorax as a part of palliative care. So first, I would, Farooq has clearly highlighted कि आप क्लिनिक में बैठ के पेशेंट को कैसे स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं कि उसकी बीमारी कहाँ तक पहुंच चुकी है. ईजल गाइडलाइंस ने भी इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है. पहली बात तो यह है कि कंपनसेटेड से डीकंपनसेटेड होने का रेट 5 to 7% पर ईयर है. आज आपके पास 100 कंपनसेटेड लिवर डिजीज के पेशेंट हैं, तो आज से 1 साल के बाद उनमें से 5 to 7 डीकंपनसेट कर जाएंगे. Decompensated cirrhosis is a systemic multi-organ disease or dysfunction. So it is not localized to the liver, and liver is at the center stage, but it involves multiple organs in the body. According to the EASL guidelines, compensated cirrhosis के 3 stages है, 0, 1, 2. 0 when no varices and mild portal hypertension, where liver stiffness is more than 15 but less than 20 if you have a fibroscan, and HVPG is less than 10. I will not talk about HVPG, but the platelet count, which is an indirect marker, is more than 150 here. Stage 1, when there are no varices but clinically significant portal hypertension. This is a stage when liver stiffness is more than 20 kilopascals, if you have done the fibroscan, and HVPG is more than 10. Forget about HVPG if you don't have the facility for it, and you don't have it. Platelet count here is less than 150. So stiffness more than 20 kilopascal and platelets less than 150. These are the patients who are likely to have clinically significant portal hypertension. And you can identify those sitting in your clinic anywhere in Pakistan, district hospitals, in your family physicians clinics, and even in consultant clinics. So platelet count less than 150, and liver stiffness, if you have that, more than 20. Stage 2 is when varices appear. Of course, this is always equates with clinically significant portal hypertension. In other words, agar portal pressure या HVPG is less than 10, it is less likely or highly unlikely कि varices होंगी. लेकिन अगर ये more than 10 है, which is what we call clinically significant portal hypertension, तो वेरिसीज अपीयर होने का बहुत चांस है. इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास 100 पेशेंट्स हैं सिरोसिस के, कंपनसेटेड सिरोसिस के, आपने किसकी एंडोस्कोपी करनी है? आपने एंडोस्कोपी उसकी करनी है जिसका लिवर स्टिफनेस स्कोर इज मोर देन 20 किलोपास्कल्स और प्लेटलेट्स आर लेस देन 150. सो दिस इज अ गुड गाइड. कंपनसेटेड सिरोसिस की ये 3 स्टेजेस याद रखें, 0, 1, 2. ये आप लिवर स्टिफनेस और प्लेटलेट काउंट पे आइडियली HVPG, लेकिन प्लेटलेट काउंट एज अ सरोगेट मार्कर पर आप ये इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. डीकंपनसेटेड सिरोसिस हम उसको कहेंगे जहां पे 1, 2 या 3 डीकंपनसेटेड कंपनसेटिंग इवेंट्स हो चुके हैं. पेशेंट को वेरिसियल ब्लीडिंग हो गई है, ये स्टेज 3. फर्स्ट नॉन ब्लीडिंग डीकंपनसेशन, आइदर असाइटिस अपीयर हुई है या पेशेंट एनकेफेलोपैथी में चला गया है, स्टेज 4. स्टेज 5 सेकंड डीकंपनसेटेड
decompensating event. यहाँ पर अगर ascites हुई थी तो अब उसे encephalopathy हो गई है. So ये respectively stage 3, 4 और 5 है. यहाँ पर जैसे आपको फारूक ने लास्ट उसमें बताया था कि आपने यहाँ पर अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं है ड्यू टू वन रीजन और दी अदर, आपने उसको पैलिएटिव केयर के लिए तैयार करना है उसको और उसकी फैमिली को या बोथ. और फाइनल स्टेज जो डीकम्पनसेशन का है वो लेट डीकम्पनसेशन है. इसमें रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होगी, persistent encephalopathy, jaundice, infections, renal or other organ dysfunction, and it may lead to ACLF and death. So these are the stages of compensated and decompensated cirrhosis. इधर तो stage 6 में कोई doubt नहीं है कि it is too late, probably too late, not all of them, but mostly all of them are too late for transplant, और आपने palliative care देनी है. और decompensated stage में भी आपने identify करना है कि किसको refer करना है transplant के लिए और किसको आपने palliative care के लिए तैयार करना है. और ये बात फारूक ने लास्ट 2 मीटिंग्स में बड़ा क्लियरली हाईलाइट कर दिया था. और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्लिनिक में बैठ के ये बता सकते हैं रिलेटिव्स को, पेशेंट को कि कंपनसेटेड सिरोसिस में मीडियन सर्वाइवल इज अबाउट 10 years to 12 years. डीकंपनसेटेड सिरोसिस जितना डीकंपनसेशन बढ़ती जाएगी, ब्लीडिंग भी हो गई, असाइटिस भी हो गई, एनकेफेलोपैथी भी हो चुकी है, उनमें सर्वाइवल कम होता जाएगा. बट मीडियन सर्वाइवल इज अबाउट 2 years. इसलिए यहाँ पर ही आपने तैयारी करनी है पैलिएटिव केयर की. और ऑफ कोर्स यहाँ पर एंड स्टेज पर तो आप तैयार हैं. सो हम इन 2 स्टेजेस पर बात करेंगे आज, जहां पर हम पैलिएटिव केयर शुरू कर देते हैं. हमें पता है कि पेशेंट ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, बात हो गई है, और हमने पैलिएटिव केयर शुरू करनी है. बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं डीकंपनसेटेड सिरोसिस की, लेकिन हम आज सिर्फ असाइटिस, हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स और टू सम एक्सटेंट रीनल इंपेयरमेंट पे बात करेंगे. बाकी कॉम्प्लिकेशंस में काफी डिस्कस हो चुकी हैं. एचपीएस, पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी पे अभी हमने बात नहीं की, और बाकी चीजों पर ऑफ कोर्स इन बाकी जो सेशंस होंगे उसमें बात होगी. सो आज हमने असाइटिस की वजह से जो प्लूरल इफ्यूजन होती है, जैसे हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं, और टू सम एक्सटेंट रीनल इंपेयरमेंट पे बात करनी है. अब मैं यहाँ पर कुछ केसेस आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद आफ्टर डिस्कशन मैं इन केसेस को दोबारा टेकअप करूंगा. एक 72-year-old gentleman known to have ischemic heart disease, diabetes and CKD, decompensated cirrhosis, liver presents with marked abdominal distension, stage 4, grade 4 hepatic encephalopathy, oliguria, deep jaundice, and on examination he is ecteric, afebrile, blood pressure 90/50, marked ascites, grade 4 hepatic encephalopathy. He has pampers on which was dry. How will you manage this patient? I'll take it up later on, और मैं 3-4 केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं और बाद में इनके आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा. 68-year-old gentleman known to have decompensated cirrhosis for 2 years. So आप समझ लें कि 2 साल पूरे हो गए. Now वो बोनस पे जिंदा है. With past history of recurrent upper GI bleed, ascites, and intermittent hepatic encephalopathy, presents with marked abdominal distension and oliguria. He refused evaluation for liver transplant for multiple reasons in the past. On examination, he is jaundiced, afebrile, low blood pressure, respiratory rate is 32, so the ascites is bothering him. Tense ascites, bilirubin is 2.2, creatinine is high, 2.1, hemoglobin 9.4, sodium is low, albumin is low. And how will we manage this patient? So we'll take it up later on. Let's take up the third case. 69-year-old lady known to have decompensated cirrhosis for 2 years, past history of ascites requiring recurrent admissions, repeated acetic taps, and maintenance high-dose diuretics, presents with marked abdominal distension. She also refused evaluation for liver transplant in the past, and currently on examination, she is ecteric, afebrile, low blood pressure, again, high respiratory rate 32, and tense ascites.
Bilirubin is 2.2, creatinine is 1.1, and there has been no increase recently. Hemoglobin 9.4, sodium 130, and albumin 2.1. Typical numbers that you see in such patients. So how will we manage this patient who is got tense ascites and normal kidney function, but very, very bad uh, liver functions and decompensated known for 2 years? The last case is a 60 years old lady known to have decompensated cirrhosis, again for 2 years, with past history of ascites requiring recurrent admissions, repeated acetic taps, and maintenance high dose diuretics. Presents with abdominal distension and shortness of breath. She has also refused evaluation for liver transplant in the past. On examination, she is icteric, afebrile, blood pressure is 90/50, respiratory rate is 32. She has moderate ascites and marked right pleural effusion. Numbers are the same, no CKD at this, no acute kidney injury at this stage. Creatinine has not changed recently. Numbers are as you would expect in such patients. So this is the patient with moderate ascites and massive right effusion. So right hydrothorax. Now coming to guidelines from EASL, it says कि आपको शुरू में ये चाहिए at the compensated stage या even before that कि आप etiology को एड्रेस करें. हेपेटाइटिस बी है, सी है, उसको आप ट्रीट करें. अल्कोहल है, उसको ट्रीट करें. ऑटो इम्यून है, उसको ट्रीट करें. तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज जब आपने इंटरवीन किया है, the impact would be variable. So it will be dependent on the status of the liver at that time. Generally speaking, अगर compensated cirrhotic है, तो आप पेशेंट से यही कहेंगे कि हम इलाज तो कर रहे हैं सी का, लेकिन खराब जिगर ठीक नहीं हो जाएगा. खराब भी हो सकता है, उसमें कैंसर भी बन सकता है, सो हमें मॉनिटर करने की जरूरत है. ये भी चांस है कि अगर हम आग बुझा दें तो मजीद जलेगा नहीं, यानी लिवर स्टेबल रहेगा, और इसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा फॉर HCC एंड फॉर decompensation, which may still happen despite treating the etiology. और कुछ लोगों में 30% और सो 1/3 में लिवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन इंप्रूव करेगा, बट इट टेक्स टाइम. इट टेक्स अबाउट an average of 3 to 4 years for the improvement to begin to appear. Say F4 से F3 हो गया, अगर ascites थी तो वो disappear हो गई permanently, etc. etc. So आपको 1/3 patients में compensated या decompensated cirrhosis में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है. सो पेशेंट को आप इस स्टेज पर यही बताते हैं कि खराब जगह ठीक नहीं होगा, आग बुझा देंगे ताकि मजीद ना जले, मॉनिटर करना पड़ेगा. डीकम्पनसेशन और कैंसर अब भी बन सकता है, स्टेबल भी रह सकता है, और कुछ लोगों में 3 से 4 साल के बाद इंप्रूवमेंट भी होती है. सो यही मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ. आजकल बहुत बात होती है कि की पैथोजेनेटिक फैक्टर्स जो ऑपरेटिव हैं सिरोसिस में, उनको टारगेट किया जाए, लाइक माइक्रोबायोम एब्नॉर्मेलिटीज बाय ट्रीटिंग विद रिफैक्सामिन, व्हिच लीड्स टू बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन एंड SBP etc. एंड यू नो ACLF में भी कुछ हद तक टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया सर्कुलेट करते हैं, और सारा साइटोकाइन रिलीज होती है और प्रॉब्लम्स होते हैं. डिस्टर्ब्ड सर्कुलेटरी फंक्शन के लिए लॉन्ग टर्म एल्ब्यूमिन, अगेन दिस हैज बीन ट्राइड. कुछ रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अभी आप अक्रॉस द बोर्ड रिकमेंडेशन देना शुरू कर दें. इन्फ्लेमेटरी स्टेट के लिए स्टैटिन्स ट्राई की गई हैं. सिम्वास्टैटिन, it works as an anti-fibrotic and anti-inflammatory agent, but again the results are rather mixed and cannot be replicated in every population, so it is no recommendation can be made at this stage. Of course portal hypertension ke liye beta blockers ka role established hai, and we continue to use that
in patients with documented portal hypertension. So ये चीजों पर नजर रखने की जरूरत है कि long term rifaximin without encephalopathy, does it have any role? Long term albumin intermittently, statins and beta blockers, do they do any good in the long run or not? So आज हम बात करेंगे एसआईटीज और हाइड्रोथोरेक्स की, particularly in end stage decompensated cirrhosis जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन नहीं है. एसआईटीज अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, यानी उसमें उस वक्त कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई हेपेटोरीनल सिंड्रोम या एक्यूट किडनी इंजरी एचआरएस नहीं है. सो अनकॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड. It is one of the most common complication of cirrhosis, and decompensated cirrhosis में आपको बहुत commonly नजर आती है. और जैसे मैंने बताया कि 5 to 10% patients decompensate करेंगे, इसी तरह आपके compensated cirrhosis में 5 to 10% per year के हिसाब से ascites develop हो सकती है. It has a significant impact on patients. It not only looks bad, it behaves badly and indicates a downhill course in the natural history of the disease. जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया कि bleeding हो गई, ascites appear हो गई, that's it. Patient का survival is less than 2 years, maybe less, और इन पेशेंट को या तो आप ट्रांसप्लांट के लिए भेजेंगे या पैलिएटिव केयर में डाल देंगे. It may lead to hospitalization with complications like AKI, HRS or SBP, requires long-term treatment with diuretics. It can be direct cause of further complications, AKI, HRS and SBP, and it carries poor prognosis. इस पर फारूक ने भी बात की थी कि 5-year survival इनमें almost less than 30% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. और जब आप refractory ascites की बात करते हैं तो वहाँ तो it is dismal. We are not even talking about 5-year survival. We are not talking about 2-year survival. 6-month survival falls to less than 20% when we talk about refractory or complicated ascites. ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप compensated cirrhosis देखते हैं, ये बड़ी standard guidelines हैं कि उनकी इवैल्यूएशन के लिए जब ascites अपीयर हो तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, लैब असेसमेंट तो आप जरूर करेंगे, और हर वर्जिन ascites को और सस्पेक्टेड एसबीपी का आप एसिटिक फ्लूइड एनालिसिस जरूर करेंगे. ये भी आपको पता है कि ascites is graded based on the amount of fluid in the abdominal cavity, mild ascites, moderate ascites and severe oblique tense ascites. Severe वो है जो बहुत ज्यादा है लेकिन पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट नहीं है. टेंस वो है जो severe भी है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट भी है. सो ये थोड़ा सा फर्क है, इनमें कोई इंटरचेंजेबली यूज होती हैं ये टर्म्स, बट माइल्ड, मॉडरेट, severe is widely used and one should know that these are the standard terminologies. Paracentesis, any new patient presenting with ascites or when you suspect SBP. और इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. सैग, white cell count और neutrophil count और एसिटिक फ्लूइड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ये आप सबको पता है और आप करते हैं. So this is a standard एसिटिक टैब. इसको आपने ट्रीट कैसे करना है? माइल्ड ascites है तो आप ट्रीट भी कर सकते हैं या सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हर ascites को आपने ट्रीट करना है. डिटेक्ट हो नहीं रही, अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें थोड़ी सी ascites है, व्हाई डू यू वांट टू चेज दिस? आप डायूरेटिक्स देंगे, पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में डालेंगे, वीकनेस में डालेंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे उससे और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट करेगी. सो माइल्ड ascites को आप ट्रीट भी करते हैं तो प्लीज बहुत लो डोज डायूरेटिक्स और ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रीट करें. मैसिव डोजेस ऑफ डायूरेटिक्स ना दें. मॉडरेट और सीवियर ascites को आप ट्रीट करते हैं जनरली. मॉडरेट में आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करते, आप
dietary or diuretics, dietary restriction or diuretics. सोडियम रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल है, कहीं कुछ लिखा हुआ है कहीं कुछ, बट बॉटम लाइन ये है कि आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है 80 to 120 millimole per day, corresponding to 4.6 to 6.9 gram of table salt per day. क्या है ये? एक हीप्ड चाय का चमचा टेबल सॉल्ट पर डे. So 80 millimoles, yeah, 5.2 gram is one heaped teaspoon of salt to be consumed in 24 hours. No added salt वगैरह को भूल जाएं, ये हमारे लिए relevant नहीं है. बहुत ज़्यादा सोडियम रिस्ट्रिक्शन ना करें. इसको सब ने हाईलाइट किया है कि इससे फूड का मज़ा ख़राब हो जाता है और पेशेंट की न्यूट्रिशन अफेक्ट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और फारूक ने इस पे बात की हुई है कि न्यूट्रिशनल फ्रेल्टी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी लिवर की सिवेरिटी इंडेक्स का. सो यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट सो बैडली कि पेशेंट खाना ही छोड़ दे, क्या मैंने खाना ही नहीं है, लून पांदे नहीं हो, मैं हम खाना ही नहीं खाना. सो डोंट take the patient to that stage. Bed rest, short term or long term, is not recommended. Let them live a normal life. So मेरी recommendation generally यही होती है कि start low dose spironolactone और furosemide, certainly not more than 50 and 20. Patients का response variable होता है, 50 spironolactone और 20 furosemide, increase and decrease dose as needed. आमतौर पे मैं इस stage पर within 10 to 14 days patient को बुला के डोज की एडजस्टमेंट करता हूँ. मैक्सिमम recommended dose is 400 of spironolactone and 160 of furosemide. Target weight loss is 0.5 kilogram per day without edema and 1 kilogram per day with edema feet. Of course, आपको non-steroidal anti-inflammatory drugs, ACE inhibitors, ARB blockers and alpha-1 blockers को avoid करना चाहिए. याद रखें कि carvedilol beta और alpha-1 blocker है, इसलिए some people say कि refractory ascites में one should try and stop carvedilol and substitute it with propranolol. Aminoglycosides को भी avoid करें, nephrotoxic है, और contrast media has to be used with caution. अगर आप CT with contrast कर रहे हैं तो you have to be careful. जब आप डायूरेटिक्स देते हैं तो हमेशा याद रखें कि PSE हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरकलीमिया, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है. सो इनिशियली 1 to 2 वीकली मॉनिटरिंग इज अ मस्ट. मत पेशेंट को दवाई दें और कहें कि 2 महीने के बाद आए. विदिन 1 to 2 वीक्स इनिशियल फेजेस में जरूर कॉल करें और इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर लें. मसल क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं तो मे बी ट्रीटेड विद बैक्लोफेन, एल्ब्यूमिन, प्रीगैबलिन, विटामिन ई, whatever is available and whatever suits your patient. I certainly use vitamin E, pregabalin and baclofen one by one if my patient is having cramps. Failure to respond to maximum doses of diuretics or complications like AKI, HRS, PSE is what we are heading towards. Refractory ascites, and such patients require hospitalization, like one of the patients I discussed in the slides that I presented about the case summaries. Sodium की बात हम कर चुके हैं. 2 gram sodium, which is equal to 88 millimole sodium, which is equal to 5.2 gram dietary salt. EASL guidelines recommend 80 to 120, which is equal to 4.6 to 6.9 gram of dietary salt. The same are the recommendation by British Society of Gastroenterology and British Association of the Study of Liver. So they recommend same towards the higher side of salt restriction. Fluid restriction is not necessarily needed unless there is hyponatremia, which in cirrhosis, decompensated cirrhosis, is defined as less than 125. Goal is a negative sodium balance, and unfortunately the side effects may be unpalatability
which may compromise nutritional status, और आपको इसके बारे में केयरफुल होना पड़ेगा. अगर न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े तो करें, बट प्लीज do not let the patient die of malnutrition and frailty. Why sodium restriction is important? यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूंगा. आपने एक पेशेंट का 10 लीटर लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस किया, इसमें आपने सोडियम रिमूव किया 1400 मिलीमोल. ये मैं रफली ले रहा हूं कि पेशेंट का सीरम सोडियम इज 140 मिलीमोल. पेशेंट आपका डाइटरी सोडियम 80 मिलीमोल पर डे ले रहा है. इस हाल में एवरी डे वो 70 मिलीमोल सोडियम रिटेन करेगा. यूरिन में तो कोई सोडियम एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा. इन पेशेंट्स में जिनमें रिफ्रैक्टरी एसाइटिस होती है, यूरिन सोडियम इज 0. तो कहां से सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है? स्वेट में और स्टूल में, विच इज हार्डली 10 मिलीमोल. तो पेशेंट 70 मिलीमोल डेली रिटेन कर रहा है. तो सोडियम retained in 20 days is 1400 millimoles, or this patient will require 10 liter paracentesis every 3 weeks. Agar patient is not complying with sodium restrictions in diet, ascites will recur earlier, requiring more frequent large volume paracentesis. So that is why sodium restriction is important. But आप थोड़ा सा compromise तो कर सकते हैं कि every 3 weeks की बजाय every 2 weeks उसका एसिटिक टैप कर दें, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस, लेकिन न्यूट्रिशन अफेक्ट ना होने दें. सो कंप्रोमाइज करें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इट मैटर्स. सो आप 80 की बजाय 120 मिलीमोल्स दे दें उसको, अगर उसकी न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रही है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट सोडियम टू सम डिग्री. रिफ्रैक्टरी एसाइटिस 2 किस्म की है, डायूरेटिक रेजिस्टेंट और डायूरेटिक इंट्रैक्टेबल. बेसिकली रेजिस्टेंट में यह है कि आप मैक्सिमम डोजेज ऑफ डायूरेटिक्स दे रहे हैं, रिस्पांस कोई नहीं आ रहा, पानी कम नहीं हो रहा. और इंट्रैक्टेबल वो है कि आप मैक्सिमम डोजेज पे पहुंचते ही नहीं है, पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इस डेफिनेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि कितने दिन में कितने डोज में, बट यू नो generally speaking, maximum doses of diuretics for 7 days is considered as failure or diuretic resistant ascites. दोनों को आप refractory ascites कहते हैं और दोनों के management is very similar. Refractory ascites हो जाए तो उसका आप क्या कर सकते हैं? टैप्स, बार बार टैप करें. Large volume with albumin. Albumin दे 4 to 6 gram per liter of ascites drained. So अगर आपके पास 20% 100 cc एल्ब्यूमिन आपने दी है, तो आप 4 लीटर से 5 लीटर सेफली टैप कर सकते हैं. टिप्स आप कर सकते हैं अगर पेशेंट को एनकेफेलोपैथी नहीं है, उसका कार्डियक स्टेटस ठीक है, और ट्रांसप्लांट जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये पेशेंट सूटेबल नहीं है ड्यू टू वन रीजन और दी अदर. अल्फा पंप इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे पास शायद कोई भी पूरे पाकिस्तान में हो नहीं सका बिकॉज ऑफ कॉस्ट, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अल्फा पंप. स्टॉप कार्बिडोल, इसकी बात मैं कर चुका हूँ. अल्फा ब्लॉकर्स हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट on the renal circulation, so you can decide to stop carbidool and add low dose propranolol, provided the blood pressure and the renal function is preserved. Peritoneovenous shunt or Levine shunt used to be done in the past. Problem इसके साथ ये है कि DIC होती है, shunt block हो जाता है, so long term results अच्छे नहीं है, but who cares, ये patient का survival चंद महीना है. So maybe you can still consider it in your setup and to relieve repeated acidic taps. AKI HRS हो जाए तो हम टर्लीप्रेसिन पाकिस्तान में विद एल्ब्यूमिन देते हैं, यूएस में अवेलेबल अभी तक अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए वो माइडोड्राइन देते हैं. एसबीपी डायग्नोसिस के बाद आप एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके बाद आप प्रोफाइलैक्सिस पर रखते हैं लॉन्ग टर्म. ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि एक्यूट किडनी इंजरी HRS
SBP is not a contraindication for large volume paracentesis. So आपके पास patient आता है, creatinine उसका 2.2 है, don't worry. Patient uncomfortable है, tense ascites है, do tap and tap large volume paracentesis आप कर सकते हैं. ये क्योंकि median survival इसमें 6 months है, आपका मकसद patient को comfortable रखना है. एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस एसबीपी के लिए भी देनी है और उन लोगों में भी देनी है जिनमें सीपीटी मोर देन 9, एसिटिक प्रोटीन लेस देन 1.5, सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 1.5 और सोडियम लेस देन 130. लोग पूछते हैं कितनी देर देनी है. वेल, इट मे बी स्टॉप्ड ओनली इफ द कंडीशन इंप्रूव्स and ascites permanently disappears, which hardly ever happens in such patients. So once you start antibiotic prophylaxis, for all practical purposes, it is for patient's life, which is not going to be very, very long. Hydrothorax, what is the definition? The accumulation of transudate in the pleural space. I'm glad that Farooq is पे बात कर चुका है, so I'll restrict my talk on hydrothorax to just bare minimum. ये बात याद रखें कि आपको pleural effusion आमतौर पे right side पर होती है, left पर हो सकती है in around 10% of patients, but you have to rule out cardiac, pulmonary and pleural disease. So minimum a chest x-ray and an echocardiogram must be done in such patients. If possible, HRCT is better. But you know, आपने ये causes rule out जरूर करनी है, either clinically or with minimal possible tests. होती क्यों है ये आपको फारूक पिछली दफा बता चुके हैं कि ascites moves through small diaphragmatic defects and negative intrathoracic pressure induced by inspiration pulls it up from the peritoneal into the pleural cavity. It can lead to respiratory failure, so it is very, very important that you address this issue as a part of palliative care. Don't let the patient suffer. It makes them unwell, they cannot breathe, they are fighting for breath, so you must relieve their misery by various treatments which we are going to discuss. It can be complicated by spontaneous bacterial infections leading to empyema. It is certainly associated with poor prognosis. इसीलिए कहते हैं किसी patient में decompensated cirrhotics में hydrothorax हो जाए, आपके पास और patient के पास option है तो immediately उसको liver transplant के लिए refer कर दें, because these patients do not do well and their median survival is short, just like refractory ascites, about a few months only. Once आपने pleural effusion का diagnosis कर लिया है, rule out cardiopulmonary and primary pleural diseases by simple measures, chest x-ray, HRCT and an echo. These are bare minimum investigations which can do that. Diagnostic and therapeutic thoracentesis is required in most of these patients, particularly जहां पर आप bacterial infection suspect कर रहे हैं. EASL guidelines इसके बारे में क्या कहती है? फर्स्ट लाइन तो यही है कि आप ascites को ट्रीट करें विद डायूरेटिक्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस. और थेराप्यूटिक thoracentesis टू रिलीव डिस्निया, अगर पेशेंट आपका डिस्निक है, रेस्पिरेटरी रेट उसका 30 to 40 के करीब पहुंच रहा है, उठ के बैठा हुआ है, अनकंफर्टेबल है, तो और एक्सरे पर आपको क्लियर कट एफ्यूजन नजर आ रही है या अल्ट्रासाउंड पर, गो अहेड, आइदर विद और विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप फौरन इसको टैप कर दें. The guidelines tell you that the patients with hydrothorax should be evaluated for liver transplant. We already talked about it. Diuretics and thoracentesis are recommended as the first line management for hydrothorax. Therapeutic thoracentesis is indicated in patients with dyspnea. Chronic pleural drainage by tube placement should not be performed because of frequent occurrence of complications. इस पर फारूक ने बहुत highlight किया last time. I will not highlight it further, but therapeutic
आप उसको टैप तो जरूर करें, लेकिन ट्यूब ना डालें, चेस्ट ट्यूब ना डालें. In selected patients, tips. In selected patients, pleurodesis, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी दोनों खाली कर दें टैप करके, फिर आपको प्लूरोडिसिस हो सकेगी, वरना होगी नहीं, which is extremely uncommon. इसीलिए in selected patients, in very few patients, you would consider that. Mesh repair of diaphragmatic defects, again, for very, very selected patients. I have not hardly ever seen a patient जिसमें ये किया गया हो in Pakistan, at least in my 30 years experience here. So coming back to our case number 1, ischemic heart disease, 72-year-old, diabetic CKD, decompensated cirrhosis, patient grade 4 coma में है, 10 ascites है, no, moderate marked ascites है, oliguria, deep jaundice है, grade 4 coma में है, pampers dry हैं, how will you manage? Best supportive care. I will not do anything. I'll put the oxygen on. फारूक ने बताया है कि ऑक्सीजन जरूर दें, क्योंकि उससे ब्रेन इरिटेबिलिटी कम होती है और डिस्कम्फर्ट रिलीव होती है. 500 सीसी प्लस आउटपुट एक जनरल प्रिंसिपल है. आईवी फ्लूइड दे दें, मे बी डेक्स्ट्रोज, हु केयर्स. हमने तो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड टेस्ट इसमें किए ही नहीं, और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि इस किस्म का पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसे एडमिट तो कर दिया है फैमिली को रिलीफ देने के लिए, लेकिन कोई ब्लड टेस्ट ना कराएं, सिर्फ ऑक्सीजन दें, आईवी फ्लूइड 500 सीसी प्लस आउटपुट, और अगर इरिटेबिलिटी या डिस्कम्फर्ट होती है तो उसको रिलीव करें बाय लो डोज शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, या ट्रामाडोल आपके पास होती है, वो आप दे सकते हैं. सो इस पेशेंट को जो ग्रेड 4 कोमा में है, डीप जॉन्डिस है, कुछ नहीं करना, ना कोई ब्लड टेस्ट करने हैं, जस्ट आपने फैमिली को रिलीफ देना है. उसको दाखिल तो कर लिया है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए, आईवी फ्लूइड लिमिटेड अमाउंट, और अगर इरिटेबिलिटी होती है तो उसकी ट्रीटमेंट. 68-year-old gentleman, decompensated cirrhosis, history of GI bleed, ascites, intermittent encephalopathy, marked ascites, इसकी creatinine 2.1 है, so ये AKI HRS में है, bad liver function है. हम उसे एक ट्रायल जरूर देंगे रिवर्स करने के लिए. लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस अप फ्रंट करेंगे ताकि वो उसकी डिस्कम्फर्ट रिलीव हो जाए, फॉलोड बाय terlipressin and albumin. Treat SBP if present or suspected. If responder for HRS AKI, later on diuretics देंगे. अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता आफ्टर 3 days, और मैं इसमें डोज इंक्रीज करता हूँ टर्लीप्रेसिन का, अगर फिर भी another 3 days में कोई फायदा नहीं होता, तो मैं 7 days के बाद I give up and move on to best supportive care like I discussed in the previous patient. So HRS और SBP अगर है, पेशेंट कॉन्शियस है, जरूर ट्रीट करें, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फैमिली के साथ दोबारा डिस्कशन करके उसको पैलिएटिव केयर पे डाल दें. ये पेशेंट अगेन सिमिलर, decompensated, repeated acetic taps in the past, high dose diuretics, again presents with marked abdominal distension, creatinine इसकी ठीक है, liver is bad, how will you manage? Large volume paracentesis, large volume paracentesis and large volume paracentesis followed by diuretics. Select patients में tips और alpha pump कंसिडर किया जा सकता है. पेरिटोनियो वीनस शंट पे मैंने बात कर ली. फाइनली एक ये वाला पेशेंट जिसके एसाइटीज भी है मॉडरेट और राइट इफ्यूजन है, एडवांस्ड लिवर डिजीज है, अभी क्रिएटिनिन नॉर्मल है और रिसेंट इंक्रीज नहीं है. लोग किताबें कहती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्टियोटाइड और टर्लीप्रेसिन हाइड्रोथोरेक्स की ट्रीटमेंट में कुछ लोग रेकमेंड करते हैं. आई हैव नेवर डन दिस. आई जस्ट गो स्ट्रेट अवे for therapeutic pleural and ascitic tap if needed, followed by diuretics. Tips, peritoneovenous shunt वगैरह आप कंसिडर कर सकते हैं. Pleurodesis with or without video assisted thoracoscopy and diaphragmatic repair
is hardly possible in such patients. Alpha pump, yes, in the Western world it is done. For us, it is too expensive, requires general anesthesia, and we have no experience of this. So, ये सारी टॉक का मकसद ये था कि बॉटम लाइन आप इस किस्म के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे. एक पेशेंट बिल्कुल ड्राउजी है, डीप जॉन्डिस है, 10 सोसाइटीज है, जस्ट forget about the treatment, make his end comfortable, peaceful and graceful, और उसको आप सपोर्टिव केयर पे डाल दें. पेशेंट कॉन्शियस है, मार्क्ड असाइटिस है, टैप करके उसकी डिस्कम्फर्ट रिलीव करें और डायूरेटिक्स पे रखें और बाकी सिंपल मैनेजमेंट करें. हाइड्रोथोरिक्स है, आप उसको टैप करें विद और विदाउट एसिटिक टैप और डायूरेटिक्स पे डाल दें. टिप्स, peritoneovenous shunt or baki options are hardly ever possible. So with this, I conclude my talk and would be happy to take questions now, and we'll see ke Farooq साहब ने कितने questions answer कर दिए हैं मेरे behalf पे. Thank you. Thank you, Dr. Altaf. Long topic, आपने इसको बड़ा अच्छी तरीके से cover किया. Before we start the question and answer session, I would like to thank Pakistan Society of Hepatology for making this happen, and also Sami Pharmaceutical for an unrestricted educational grant for this program. मैं क्वेश्चन ये छोड़ के जाऊंगा आपसे और फारूक से. ये जो रिकरेंट पेशेंट्स हैं, हमने पैलिएटिव केयर पे डिसाइड कर लिया, फैमिली ने कहा उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना, अब वो रिकरेंट LVP 2 हो चुके हैं. तो व्हाट अबाउट डूइंग दिस प्रोसीजर एट होम? उसका एक्सपीरियंस क्या हमें वो करना चाहिए? क्या हमें फैमिली से बात करनी चाहिए? या हम समझते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी शायद अभी राइप नहीं है इस किस्म के काम के लिए? जी डॉक्टर अल्ताफ, पहले मैं पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लूंगा, फिर यूके का पर्सपेक्टिव. मैंने बहुत किए हैं घरों में जाके, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स की, फैमिलीज के, क्योंकि सपोर्टिव केयर पे हैं, पैलिएटिव केयर पर हैं. हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट प्लेजेंट. सिर्फ अगर आपने टैप करना है, 10 लीटर पानी निकालना है, एल्ब्यूमिन घर में दी जा सकती है, तो आई वुड नॉट हेसिटेट टू डू इट. फारूक? बिल्कुल एग्रीड. अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक और बात बताता हूँ. जो आपके पेशेंट्स पुअर है ना, और जो एल्ब्यूमिन अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको ये लगता है कि देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स, आप उनको 4 लीटर टैप भी कर सकते हो. एंड यू एक्चुअली, अगर उनके किडनी फंक्शंस बुरे नहीं हैं और उनका सोडियम पर्टिकुलरली 127, 128 है, आपको एल्ब्यूमिन से डेस्परेटली रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. ओके, दे विल नीड फ्रीक्वेंट टैप्स, लेकिन अगर आप पर्पसली इस चीज को देखो, 4 to 5 लीटर का टैप जो है वो आपके पेशेंट को सिम्टोमेटिकली बहुत फर्क डालता है. एंड यू कैन रिपीट इट फ्रीक्वेंटली. आप नॉर्मली ये कर सकते हो कि यू कैन गिव अबाउट 4 to 5 days और 1 week इन बिटवीन, और आप कर सकते हो. ये कोई ऐसी वो चीज नहीं है. अच्छा, नंबर 1. नंबर 2, असद, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एक्चुअली द होल बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रोग्राम, जो मेरी थॉट्स प्रोसेस था इसमें, वो सिर्फ ये था कि जीपीस को, प्राइमरी फिजिशियंस को, और जो हमारे स्पेशलिस्ट फिजिशियंस हैं, पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल्स को चला रहे हैं एज कंसल्टेंट्स, आई थिंक ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम एजुकेशनली इतना एम्पावर कर दें कि वो ये पेशेंट्स जो बार बार टेस्ट्स और बार बार प्रोसीजर्स और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं, वो ना जाएं. अच्छा, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? वो आपके पास रजिस्ट्रार है, आपके पास एमओ है, आपके पास एक्सपीरियंस नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट ट्रेनीज हैं, जो भी आपके पास हैं, आप उनसे उनको ट्रेन करें. जो देखो, हमारा जो यूके में हॉस्पिस का कॉन्सेप्ट है ना,
वो कोई इतना स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है. वी डोंट वांट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या आप लोगों को कि आप महंगे महंगे नए हॉस्पिटल. नो, you guys can have hospice in your own facility. What is hospice basically? It's a hospital which is home, hasn't got ITU, hasn't got emergency care department, but you can still do everything with the patient that does not need ITU level or secondary level care. Coming back to क्या मैं घर में ड्रेन्स कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं. There's absolutely no reason. अच्छा, और अगर आप वैसे ही 4 to 5 लीटर्स निकाल रहे हो, प्लीज ये बात ना काइंडली नोट कर लो, अपने जिस स्टाफ को ट्रेन करो वो टैप करने के बाद वो वहां से निकले मत. Because I can assure you that if the ascites is large volume or tense, they will have 4 to 5 liters drained in 15 to 20 minutes. टैप कीजिए, उसको पैक करो, जिसको भी आपने ट्रेन किया, may it be your nurse, may it be जिसको भी आपने ट्रेन किया, और वो उसको टैप करे और उसके बाद वो उसको पैक करके बैग लेके तो बाहर आ जाए. उसके चांसेस, ये जो असद का सवाल था ये बड़ा रेलेवेंट है फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी. और ये अल्लाह ने जो आपको और मुझे एज अ डॉक्टर एक कैपेबिलिटी दी है जिसको हम रेपो कहते हैं. वो रेपो ये है कि हमने ये असेस करना है कि आखिर ये पेशेंट या इसकी फैमिली, इनकी एजुकेशन, इनकी मेंटल कैपेसिटी, इनके डायनामिक्स ऑफ द फैमिली. अगर एक इतना बूढ़ा गरीब बाबा है जो सारा वक्त बाहर बरामदे में चारपाई पे लेटा रहता है और वहीं पे उसकी गायें भी बंधी हुई हैं, मजें भी बंधी हुई हैं और बिल्कुल ही गांव वाला हिसाब है. मेरे गांव में ऐसे होता है, ये मैंने देखा हुआ है पेशेंट्स को. जब मैं गांव जाता हूं उनको उनके घर देखने जाता हूं. सो यू नो द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज एक्सट्रीम. ऐसे सिनारियोज में टैप करके नीडल स्टमक में डाल के बाहर मत आ जाएं उसके घर से. थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, 15-20 मिनट रुक जाएं. जब उसके टैप से 3-4 लीटर निकल आए उसको पैक करें, बाहर आ जाओ. उनको बता दें कि जी मैं 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद दोबारा आ जाऊंगा. अगर ये दोबारा तकलीफ हो, मरीज को ना भेजें, आप DHQ में या तहसील हेडक्वार्टर में किसी को भी फोन पे बता दें, हम आप कंपाउंडर या बंदा भेज के तो ये करवा देंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज वेरी डूएबल. सेकंड थिंग, आप अगर गरीब लोग हैं, एल्ब्यूमिन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ज्यादा ड्रेन ना करो. आप 4 to 5 लीटर्स करके भी उनके सिम्टम्स इंप्रूव कर सकते हो. थर्ड थिंग, अगर घर में कर रहे हो और डायनामिक्स आपको लगती हैं कि इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है, तो अपने जिस स्टाफ को होम ड्रेन के लिए भेजो उसको कहो काइंडली वहां रुक जाओ, 4 लीटर खुद मॉनिटर कर लो और उसके बाद नीडल निकाल के उसको पैक करके तो आ जाओ. I hope it answers your question, Asad. जी, thank you Farooq. Professor Kashif Malik has something to add here. Kashif is also president of Pakistan Society of Hepatology. Ji Kashif, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. Thank you, Asad. Thank you very much. और thank you, Dr. Altaf. It was a very nice presentation. बड़ा मजा आया. बहुत सी चीजें हमें भी क्लियर हुई इसमें जो सर जो थेराप्यूटिक टैप्स की जो बात है, इसमें एक चीज और है कि आजकल कुछ हमारे जो हम पेशेंट्स जो कि थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, उनमें जो इस वक्त किया जा रहा है कि इनको जो है पेरिटोनियल कैथेटर डाल देते हैं. पेरिटोनियल कैथेटर रख रहे हैं, उसकी वजह से ये कि रिफ्रैक्टिव एसाइटिस के अंदर जो है, और उनको इंटरमिटेंट जो है टैपिंग, जैसे फारूक ने कहा कि घर पे करनी है, अगर थोड़ा सा उनको सिखा दिया जाए तो दे आर वेरी गुड इन दैट. और अगर थोड़ी जैसे टैपिंग है 3 to 4 लीटर है, इवन विदाउट एल्ब्यूमिन दे आर डूइंग इट दैट. तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं उसके ऊपर किया जा सकता है कि उनको हम पेरिटोनियल कैथेटर डाल दें रादर देन गोइंग फॉर अल्फा पंप, जो कि हमारे लिए इस वक्त फिजिबल नहीं है. तो इस पे वैसे मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगा कि इसका हमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है, बिकॉज कुछ पेशेंट्स में हमने करके देखा है और बड़ा इफेक्टिवली ये चल रहा है. जी फारूक, you फारूक, have any comment? सो देखो, हम इसे कहते हैं प्लूरोडेक्स या जिसको अल्फा पंप आप कह रहे हो. यू कैन डू दैट. एक्चुअली अगर आप लोग ऑलरेडी ये कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली ट्रेन एंड एजुकेट द वर्ल्ड. कैन यू डू अ ट्रायल फॉर मी कि ये जो पेरिटोनियल कैथेटर आप डाल रहे हो, इसका इन्फेक्शन रेट just do 28 days after you've inserted, or how many drains it has allowed you to do at what level, and I think that will be very well. मेरा
पेरिटोनियल ड्रेन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. हम यहाँ पे ऑफ कोर्स जो परमानेंट ड्रेन्स हैं, अल्फा पंप्स हैं या प्लूरोडेक्स है, जो इस तरह के ड्रेन्स हैं, हम वो डाल देते हैं पेशेंट्स में, और दैट एग्जैक्टली दे डू द सेम थिंग दैट द पेशेंट कैन अटैच और या केयरर कैन अटैच एंड टैप 3 to 4 liters शुड दे रिक्वायर. लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, आई थिंक दिस वुड बी अ मार्वेलस सर्विस. अगर आप कहते हैं तो स्टडी प्रोटोकॉल मैं लिख के आपको भेज देता, लेकिन यार ये रिसर्च कर दो. नहीं, इसमें फारूक, इसमें दो चीजें हैं. एक्चुअली वी स्टार्टेड इट विद बड कैरी, जो पेशेंट है बड कैरी सिंड्रोम के, बिकॉज वी दे कैन नॉट अफोर्ड टिप्स. ठीक है, एक चीज थी. तो हमने ये किया कि हमने उनके लिए स्टार्ट विद, हम ये करते थे कि उनको टोटल पैरासिंथेसिस करने के लिए हम उसमें डाल देते थे कैथेटर, और उनको ड्रेन करके तो फिर हम कहते थे कि उनकी जो थी विनोप्लास्टी ऑफ द हेपेटिक वेन्स करते थे. तो हमने ये देखा कि अगर हमें तरीके से करें तो इसमें हमें बड़ा फायदा हुआ कि हमने बहुत से पेशेंट्स की जो प्लास्टिक की नेचुरल रूट को किया तो दे रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट. फिर इसी हिसाब से जिनके मैलिग्नेंट एसाइटिस थे, तो शौकत खान वाज डूइंग दिस, तो आई लाइक द आइडिया कि उनमें जो थे, जो के रिफ्रैक्टिव एसाइटिस हैं, ऑब्वियसली बात थी क्योंकि मैलिग्नेंट या कुछ थे, तो उसमें भी ये कैथेटर रख रहे थे. Now we are doing, I have 1 or 2 patients now on this कि वो उनको हमने कैथेटर डाले हुए हैं, and they are having this tapping weekly, every 5 days. जब कभी हुआ घर पे खुद कर लिया, 3 से 4 लीटर निकाल लिया. अगर ज्यादा जरूरत पड़ी जब, और लैब्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपीटेड लैब्स नहीं हम करवाते उनकी. हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टरी है, इसको इसी तरीके से चलाना है, तो वी कैन डू इज. लेकिन ये हमारी जो है इसमें जो, लेकिन इसके लिए जैसे आपने कहा कि वो मजों वाला जो मरीज है वो नहीं इसको कर सकता, बिकॉज दे डोंट नो कि किस तरह करना है. लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, दे कैन डू दिस, कि उन्हें एहतियात अगर बताई जाए तो दे कैन डू दिस. इसके लिए इवन किसी नर्स की या उसकी भी हमें जरूरत नहीं होती. ये I think this is going to be a great work. You can actually teach the world on this. बेशक आप 12-15 पेशेंट्स का और सिर्फ 28 डेज, जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन, मॉर्बिडिटी देखी जाती है किसी भी प्रोसीजर की, इंटरवेंशन की, which is publishable or accountable should you like by any coroner's court, is 28 days. सिर्फ 28 डेज का इसका अगर आप डेटा कलेक्ट कर लें, as I said, if you want, I can send you a study protocol. This will be very publishable and actually a great service. जी, थैंक यू. इसमें सिर्फ एक चीज जो पैलिएटिव केयर के कंटेक्स्ट में है, अभी अल्ताफ साहब ने भी जिक्र किया था कि जो थोड़ा सा क्लैश मुझे लग रहा है कि स्पेशली जब हम पेशेंट्स को बता देते हैं कि आपको ये रेजिस्टेंट एसाइटिस है और पेशेंट ने ट्रांसप्लांट नहीं कराना, एंड वी हैव हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन विद द फैमिली के जो है आवर होल फोकस इज टू कीप हिम कंफर्टेबल. जिससे मैं कहता हूँ कि एक अच्छा गुजारा, सस्ता गुजारा और हो सके तो घर में गुजारा, ये वाली बात यूजुअली जो फ्रेज है जो यूजुअली मैं काफी कॉमनली यूज करता हूँ. और उसमें फिर हम बहुत सारे टेस्टों के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि अगर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनिन ऊपर नीचे जा रहा है, वो फिर एक नई गेम शुरू हो जाती है. और ये बहुत दफा होता है, अगर तबीयत बल्कि हमारे अपने यूनिट में होता है कि मैं वीकेंड पे अगर अवेलेबल नहीं हूँ एंड समबडी एल्स सीज द पेशेंट, तो जब मैं वापस आता हूँ तो मंडे मॉर्निंग को तो उसको दुनिया जहान की चीजें, एल्ब्यूमिन भी लग रहा होता है, टेलीप्रेसिन भी लग रहा होता है. फैमिली देन गेट्स कंफ्यूज, टेस्ट हो चुके होते हैं, ऑर्डर हुए होते हैं कि डेली सीबीसी, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम. तो कहीं ना कहीं पे हम हमारे अपने सिस्टम की लैकिंग है. हालांकि हमारे नुस्खों में ये क्लियरली लिखा होता है कि ये पेशेंट पैलिएटिव केयर है, लेकिन वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग दिस कि हम इसको डॉक्यूमेंट भी करें, पेशेंट्स को भी समझाएं और अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि एक मकसद ये भी है कि अननेसेसरी जो बर्डन है, अभी हम 4 लीटर विदाउट एल्ब्यूमिन की बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम उसकी कॉस्ट को किसी तरीके से कर्टेल कर सकें. I can see Javed Iqbal Farooqi here. He has been dealing hepatology for decades now. Farooqi साहब, आपका क्या experience है ऐसे patients के? We would love to hear from you. Thank you very much, Asad, and thanks Altaf Alam Saab for a very comprehensive lecture and very good comments by Farooq and Kashif. Yes, Asad bhai, agar मैं अपनी वो देखूं, एक्सपीरियंस देखूं, तो most of my patients, they are on palliative care because the one reason or another liver transplants के लिए वो तैयार नहीं हो पाते.
So what I'll be sharing my experience कि जिस तरह आपने बोला कि मैं तो investigations बड़े कम हद तक करता हूँ. Even most of these patients, I start them on sorts of palliative antibiotics. और what I do for the society is कि मैं बड़ा इतना aggressive नहीं जाता हूँ in terms of the diuretics, because when you go, when you want to dry up the patients, you cannot dry up. What you do, you land on कि electrolyte imbalance होती हैं, you precipitate encephalopathy and all those things. तो इन patients में आपको बड़ा carefully जाना होता है, and this is very very important कि आपको मालूम हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या करना है और क्या नहीं करना. This is not that patient कि आप उसको थोड़ा सा stabilize कर रहे हो for the liver transplant. These patients who are not candidate or who don't want to undergo liver transplant, these are something कि जिसमें आपको very regular follow-ups है. And this is very interesting discussion on the in the home treatments. You see, most of my patients, they are very much, I mean, they know कि what to do. वो डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं. इवन पे होम पे the ascites drainage, it's I do advise them local पे बंदा होता है. And I have personally, I am not in favor of, or I am not doing that large volume paracentesis. What I do just 3-4 liters, and yes, the need frequently, but I think it seems I have found it safe as compared to the large volume, because albumin is really a very costly business over here. So I think these are the patients who really needs regular monitoring, not to coming to your home, but I mean to your hospital, but in their home. But I have done कि मैंने इनका अपना एक WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मेरे जो असिस्टेंट होते हैं उनको मैंने डेडिकेटेड किए हुए ये केसेस, एंड दे चैट चलती रहती है. तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड बी नोइंग कि where to stop our aggressive therapy and where to monitor these. Once again, thank you very much. I personally learned a lot from Altaf Saab, as usual I do, and from the very wise comments of Farooq Khan. Wonderful. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. It's 11 p.m. now, so it's just about to finish. I would like to thank all the participants. Inshallah, 2 hafte baad we'll come up with another session on palliative care. For CME accreditation of this session, you can contact Uzair. His number and email is in the message that you received, or you can you can come to Sami Pharmaceutical. So we'll arrange the CME accreditation for those who have attended. Once again, I would like to thank Professor Altaf Alam for taking time out and delivering a wonderful talk on ascites and hydrothorax. We will be touching upper GI bleed and some other symptoms in the next sessions. And it remains for me at the end to thank Parsa Trust, Sami Pharmaceutical, and Pakistan Society of Hepatology. So, Uzair, it's over to you. You can call off the session now. Allah Hafiz from my side. Thank you very much, sir. I'm going to call off this session now. Allah Hafiz to all of you.